Thank you, Sister Suma, for giving me this opportunity. काफी दिनों बाद में एक बार फिर से आकर के एक परिवार से जो जो हम परिवार की जैसे प्रभु के भाई में भक्ति में उसकी सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। इन दिनों में हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं हमारे चर्च के अंदर, और उसी में से मैं संदेश दे रहा हूँ इन पिछले 2-3 महीने से। तो मैं उसमें से ही एक फेमिलियर वर्ड्स इस शाम के समय, जस्ट फॉर एन एग्जॉर्टेशन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट फ्रॉम फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 5। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 5, पहला कोरिन्थियों उसका 4, उसके 1 से 5 तक में से कुछ बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, दिस देन इज हाउ यू ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not judge myself. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God. As fellow servants of God, Paul is dealing with something very specific in this church. There was a big problem. They were divided because of the leaders. The church, no, it is not talking about a city church. It is talking just about one church, not the different churches in one city. It is talking about one church which is divided because of the leaders, not by the leaders, but people. Some they are saying I will follow Apollos, some they are saying I will follow Cephas, some they are saying I will follow Paul, and the more spiritual ones, they are saying I just follow Christ. So Paul is dealing with issues like this when the church is broken. तो पौलुस ने यहाँ पर दूसरे अध्याय के दूसरे पद में अपने जीवन के मोटिव को भी व्यक्त किया है, अपने जीवन के मिशन स्टेटमेंट है ना। दिस इज द मिशन स्टेटमेंट ऑफ पॉल इन फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 2। ही सेज टू द चर्च ऑफ कोरिन्थ, फॉर आई रिजॉल्व टू नो नथिंग, I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Paul is proclaiming to the church of Corinth, there are many things that we can do, there are many things that we can know, there are many things that we can aspire for. लेकिन पौलुस यहां पर बता रहा है, मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहा जब मैं तुम्हारे बीच में था कि मैं मसीह यीशु को जानूं और उसके क्रूस को पहचानूं। पौलुस जिसने इतने सारे चर्चेस को प्लांट किया, इतनी बड़ी बड़ी सेवकाई की, वो अपने सेवकाई के हर पड़ाव में इस बात को बोल रहा है। इनफैक्ट व्हेन ही वाज अबाउट टू बी डाई मार्टियर, जब वो मार्टियर होने वाला था, उसने क्या बोला था? उसने बोला था आई वांट टू नो क्राइस्ट एंड हिज क्रूसिफिक्शन। उसके दुख को, उसके क्रूस को मैं जानना चाहता हूं। नाउ इन फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 5, यहां पर हम कुछ स्पेसिफिक बातों को देख रहे हैं जो पौलुस बता रहे हैं। He is saying to us, avoiding following the patterns of this world. How should we avoid following the patterns of this world? एक लीडर्स होने के नाते, परमेश्वर के दास होने के नाते, फेलो सर्वेंट होने के नाते, कई बार हम लोग संसार में एक पैटर्न को देखते हैं, how to avoid those things in our life. हमारे व्यक्तिगत जीवन में या हमारे व्यक्तिगत सेवकाइयों में या हमारे व्यक्तिगत दर्शन में, जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, सेवकाई में बढ़ते हैं, how should I personally avoid following the patterns of this world? So verse number 1 and verse number 2 in chapter 4, he talks about the first principle. What is the first principle? He says, this then is how you ought to regard us, as servants of Christ, as those entrusted with the mysteries of God has revealed. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. The first step or the first practical advice that Paul is giving to the leaders is begin with the right perspective. एक सही दृष्टिकोण से
शुरुआत करें, एक सही दृष्टिकोण में अपने आप को लेकर के आए। बहुत ही सुंदर एक बात थी, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, वो मृत्यु को भोगने वाला था, उस समय उसने अपने चेलों से कहा, उससे पहले अपने चेलों से कहा, मीट मी एट गलीली, है ना, मुझे गलीली में जाकर के भेंट करो। एंड द रीजन बिहाइंड इट, दैट वाज द फर्स्ट लव ना, वो उनका पहला प्रेम था। गलीली में उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया था, गलीली में प्रभु के पीछे चलने लगे थे, गलीली में प्रभु के साथ में सेवकाई करने लगे थे, और प्रभु उनको बोल रहा है, जब मैं पुनरुत्थित हो जाऊं तो तुम मुझे उसी स्थान पे मिलो जहां पर मैंने तुमको पहले चुना था। बिगिन विद द राइट पर्सपेक्टिव। हिंदी में एक कहावत है, अंत भला तो सब भला, बहुत बहुत फेमस कहावत है, अंत भला तो सब भला। लेकिन यहां पर पौलुस बता रहा है, अंत भला तो सब भला, वो तो चलो ठीक है, लेकिन शुरुआत भी वी हैव टू स्टार्ट विद द बिगिन विद द राइट पर्सपेक्टिव। एंड व्हाट इज द राइट पर्सपेक्टिव? द फर्स्ट थिंग दैट Paul talks here is in verse number 1, and he says who we really are. हम कौन है, हम कौन है? हम अपने आप को अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं, कोई बोलेंगे हम इवेंजलिस्ट है, कोई बोलेंगे हम प्रॉफिट है, कोई बोलेंगे हम टीचर है, कोई बोलेंगे हम पास्टर है, कोई बोलेंगे हम अपोस्टल है। लेकिन पौलुस यहां पर दो शब्दों की द्वारा हमारे क्या बोलते हैं, ही टॉक्स अबाउट आवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान को बताता है। और वो दो शब्द क्या है? पहला शब्द लिखा है, पौलुस बताता है, नाउ दिस इज हाउ यू ऑट टू रिगार्ड अस। अब तुमको हमारे साथ में ऐसा बर्ताव करना है, फर्स्ट एज सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट। सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट। द वर्ड सर्वेंट इन ग्रीक लैंग्वेज इज ह्यूपैरिटीज। ह्यूपैरिटीज, और ह्यूपैरिटीज का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में अंडर रोअर। अंडर रोअर क्या है हमको पता है। पुराने जमाने में बड़े बड़े जहाज होते थे, और बड़े जहाज के अंदर में उनके पास में तो हमारे जैसे मोटर नहीं होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, सबसे नीचे वाले जो डेक होता था उसमें लोग बैठते थे, ज्यादातर सब गुलाम होते थे, और उन लोगों के हाथ में चप्पू होता था, पतवार होती थी ना, और वो लोग क्या करते थे, उस चप्पू को चलाते थे एक साथ मिल करके। वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, उनको एक काम दिया गया है, और उन पर एक निगरानी करने वाला, एक अथॉरिटेटिव इंसान वहां पर खड़ा रहेगा, जो उनको बताएगा उनको किस प्रकार से कार्य करना है। तो पौलुस सबसे पहली बात यहां पर बता रहा है, वी आर ह्यूपैरिटीज ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह यीशु के अंडर रोअर है, हम मसीह यीशु के अधीन में रह करके काम करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज एवरी वन ऑफ अस आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड, है ना। हम लोग हो सकता है अलग अलग नाम से अपने आप को पुकारे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपने आप को पुकारे, लेकिन अंत में जब हम प्रभु के पास में जाएंगे तो प्रभु क्या बोलेगा? वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। ह्यूपैरिटीज, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। जॉन जे वर्नन मैगी ने इस प्रकार से कहा, वी ऑल आर प्रीचर्स, वी प्रीच सम मैसेज बाय आवर लाइफ्स। We all are preachers, but we preach some messages by our lives, है ना। हम लोग कुछ दिन पहले समथार गए थे, and it was so lovely to see the fellowship, to see the communion. विश्वासी, एक चर्च के विश्वासी तो बहुत आसान है इस प्रकार से रहना, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग दर्शन को रखने वाले परमेश्वर के दास इस प्रकार से मिल करके एक साथ आनंद मना रहे हैं। there is something beautiful in that. By this the world will know that you are my disciple, when you love one another. So when we are ह्यूपैरिटीज, जब हम ह्यूपैरिटीज है, अंडर रोअर है, the focus is not on us, the focus is on the captain. और वो कैप्टन कौन है? जिसके हाथ में रडार है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो जहां चाहता है वहां पर लेकर के जाता है। एज एन अंडर रोअर वी हैव थ्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तीन हमारी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी क्या है? वी हैव टू row as the leader leads us. जैसा हमारा अगुआ हमको बता रहा है, वैसे ही हमको पतवार को चलाना है। दूसरी चीज, इन द सेम डायरेक्शन। यीशु मसीह के चेलों ने एक दिन यीशु मसीह के पास में आकर के बोला, प्रभु हमने एक आदमी को देखा था, वो आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था, हमने उसको मना कर दिया कि आज के बाद में ऐसा मत करना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा और बोला कि उसको मना मत करो, whoever is not against us is with us. So we need to understand one thing as an under rower, that we are under rowing in the same direction. We are rowing in the same direction. हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है अंडर रोवर का? He need to get the ship to the destination. उस जहाज को जहां पहुंचाना है, उसका पहुंचाने का जिम्मेदारी किसका है? इन लोगों का है।
So we are responsible for the work of Christ in this world. Yes, the Holy Spirit empowers us. The Holy Spirit gives us vision. The Holy Spirit gives us strength. The Holy Spirit gives us capability. But it is through the body of Christ. ये मसीह की देह के द्वारा है जो कार्य चलाया जाता है. So the first thing is under rower. The second point he gives us is, and as those entrusted with the mysteries. इंग्लिश में लिखा है entrusted, और ग्रीक लैंग्वेज में ये जो शब्द है ये है ओइकोनोमोस. ओइकोनोमोस का मतलब है मैनेजर ऑफ द हाउस होल्ड, या फिर एक शब्द में बोलेंगे तो स्टीवर्ड. मैनेजर ऑफ द हाउस होल्ड. एज द गुड स्टीवर्ड ऑफ क्राइस्ट हमें क्या करना है, यहां पर लिखा है एंट्रस्टेड विद द मिस्ट्रीज दैट गॉड हैज रिवील्ड टू अस. What is mystery? Once it was hidden, but it is revealed to us. There are few things. Ephesians 5:32 says the mystery is about Christ and the church. 1 Timothy chapter 3 verse 9, he says the mystery is talking the deep truths in faith with a clear conscience. Colossians 1:26, Paul says the mystery that has been kept hidden for ages and generation but is now disclosed to the saints. Every single day God is revealing his mysteries. So what is my job? What is your job? As a faithful oikonomos की जैसे एक सही स्टीवर्ड की जैसे we have to invest it to somebody's else life. Verse number 2, he says what we really have, what we are, what I have. Three things that I have, Paul talks here. First thing is I am responsible to be faithful to Christ. सबसे पहली चीज जो मेरे पास में है, मुझे क्या करना है, विश्वास योग्य रहना है. When Christ will meet, हमारे सर हमेशा बताते थे, God will not greet and God will not say well done good and successful servant. It's not about success, it's about faithfulness. The question is not about success or losing, because we are already successful people. We are already winners in Christ. मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर के हैं. सक्सेस फेलियर क्वेश्चन नहीं है, faithfulness unfaithfulness question hai. So first thing what I have the responsibility to be faithful to Christ, not just my organization, not just my church, but to Christ. Second, I have to be faithful to one another. Here it says now it is required that those who have been given a trust must prove faithful to Christ, faithful to one another. And the responsibility is now, he says, I must be continually prove myself faithful. And what we really do, we share the message of Christ. Verse number 3 and 4, because of the limitation of time, 3 और 4 में यहाँ पर ऐसा लिखा है, I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. पहला चीज जो हमें करना है वो क्या है, जो हम लोगों ने अभी परमेश्वर के वचन से देखा, बिगिन विद द राइट पर्सपेक्टिव, हैव द राइट पर्सपेक्टिव. सेकंड थिंग, वॉच आवर पर्सनल एथिक्स क्लोजली. वॉच आवर पर्सनल एथिक्स क्लोजली. यहां पर बोल रहा है कि मैं तुम में से कोई मुझे न्याय नहीं करेगा, कोई ह्यूमन कोर्ट मेरा न्याय नहीं कर सकता है. मैं भी अपने आप को न्याय नहीं करता हूं. मैं अपने आप को सोचता हूं कि मैं सही हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनोसेंट हूं. इट इज द लॉर्ड हु जजेस मी. Even when we minister, when we work for Christ, along with Christ, with the power of his Holy Spirit, my duty is watching my personal ethics closely. Watching my personal ethics closely. दाऊद राजा भजन संहिता में बोलता है, परमेश्वर मुझे जांच और देख यदि मुझ में कुछ गलत बात है या नहीं. Remind me, O Lord. तीसरी चीज 5वें पद में बोलता है, therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. Don't jump to judge. Don't jump to judge. Begin with the right perspective. Watch our personal ethics closely and don't jump to judge. Now there is a difference between judgment and correction. है ना? Correction तो होना है, लेकिन judgment नहीं होना है. Judgment क्या होता है? कई बार यीशु मसीह ने मरकुस 9 का 38 से 41 में इस प्रकार से बोला, मार्क चैप्टर 9 वर्स 38 to 41. टीचर said John, we saw a man driving out demons in your name and we told him to stop because he was not one of us.
Do not stop him, Jesus said. No one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. Whoever is not against us is for us. I tell you the truth, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to Christ will certainly not lose his reward. ये वचन हम सभी पास्टर्स बहुत बार उपयोग में लेते हैं कि प्रभु के दास को एक कटोरा पानी पिलाए तो उसका प्रतिफल कभी भी नहीं खोएगा। लेकिन उसके पहले में क्या लिखा है? उसके पहले में ये लिखा है, जो जो प्रभु का काम कर रहा है, encourage them and don't judge. Yes, correction should be made. Correction should be made. लेकिन correction किसके लिए होता है? To encourage and construct. लेकिन judgment कई बार किस लिए होता है? To put them down and to elevate कि हम सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है. Correction should always be made, but judgment should be avoided. ये चेलों ने सोचा, हम ही तो ordained लोग हैं भाई, हम ही को तो यीशु ने चुना है, वो कौन होता है ये काम करने वाला? हो सकता है वो करेगा तो अच्छे से नहीं करेगा, इसलिए हमने उसको मना कर दिया प्रभु कि तुम काम मत करो प्रभु का, हम ही करेंगे सिर्फ। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने उनको बोला, उनको मना मत करो, जो कोई हमारा विरोधी नहीं है वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ में है। अंतिम चीज, finally, verse number 5, last part, it says, he will, when the Lord comes at the appointed time, he will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motive of heart. At that time, each will receive their praise from God. Each will receive their praise from God. Give God his time. Finally, Paul reminds us as leaders, give God his time. God reserves the right of judgment, and the Lord will bring everything into the light. He will expose the motives of the heart, and the praise comes from the Lord. परमेश्वर का वचन बोलता है, पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति को सराहेगा, उसकी प्रशंसा करेगा. So 4 things how we can avoid following the patterns of this world. Begin with the right perspective about who we are, what we have, and what we do. Second, not only that, but watching our personal ethics closely as we serve Christ. Third, don't jump to judge. Correction should be made, but judgment should be avoided. And finally, give God his due time. And when we do these things and walk alongside, you know what happens? परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से आगे सारी बातों को बताता है, the nature of true apostleship or the true servanthood comes out. वही चीज बाहर निकलती है. तो may the Lord bless us all even as we serve Christ faithfully. हम जिस जिस जगह पर प्रभु ने रखा है, हम विश्वास योग्यता से उसके पीछे चल रहे हैं. आइए हम और अधिक से अधिक एक दूसरे के संग होकर के प्रभु की महिमा के लिए काम करते रहे. May the good Lord bless us all. Thank you, Sister Suma, for giving me this opportunity.